Let me just start the recording first. Okay. So The Magic Garden. It's The Magic Garden. okay. Now, what is magic? क्या होता है? Magic Garden. La la la. What is magic? आपने देखा है कभी मैजिक? किस चीज को कहते हैं बेटे मैजिक? क्या होता है मैजिक? जादू। मैजिक का मतलब जादू। Yes, जादू. The name of the meaning of this word magic is जादू. इसको मैंने नहीं देखा। देखा नहीं है, लेकिन आपने कभी मूवीज में, कार्टून्स में देखा होगा ना, जादू से कितना कुछ कर देते हैं. So today also we are going to talk about a garden. मैंने रियल Magical. में देखा है। Okay, very good. Now you all will keep quiet. Okay, अब आपने सुनना है. आपने सुनना है और जब नाम पूछेंगे then you will answer. All right? Okay. Now today we're going to talk about the magic garden. एक ऐसे garden की story है जो कि magical है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इसमें magic क्या है? ऐसा क्या magical है इस garden के बारे में? So let's read about it. Okay? I'll read it for you. और बीच में से मैं आपको भी कह सकती हूँ that बच्चे tell me which is the next line. So be attentive. All right? Your fingers should be ready. Place your fingers on the books and keep your pencils also ready with you. Right? I'll make you underline some difficult words, some new words. So you must underline them with me. Okay. So the magic garden was in a school playground. ये magic garden कहाँ पर है? School की playground के अंदर. आपके स्कूल में भी प्लेग्राउंड है, उसमें भी कुछ गार्डन्स हैं. So just like that, there is a garden in a school playground. उनकी प्लेग्राउंड में ये गार्डन है. It was very pretty. What is the meaning of pretty? Pretty क्या होता है? It was very pretty. क्या होता है pretty का meaning? मैम सुंदर। खूबसूरत। ब्यूटीफुल। Yes. मैम खूबसूरत। मैम ब्यूटीफुल। मैम प्यारा। सुंदर। मैम सुंदर। Very good. सुंदर। Now zip up your Beautiful. mouth. Zip. Okay. Right? So, जैसे कि हमारी क्लास में कुछ गर्ल्स हैं, okay, and all the girls are very pretty, बहुत beautiful, pretty girls हैं क्लास में. तो just like that, ये जो garden था, ये बहुत ही pretty, बहुत ही सुंदर था. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. अब एक गार्डन में क्या क्या होगा? फ्लावर्स होंगे, है ना? कुछ फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ स्विंग्स हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं. तो जस्ट लाइक दैट इस गार्डन में भी कुछ फ्लावर्स थे. Which flowers were those? They were sunflowers and roses stood high against the wall. अब उस गार्डन की जो वॉल थी, जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द वॉल. ओके, तो वो जो फ्लावर्स थे, वो फ्लावर्स उस वॉल के साथ साथ ऐसे ऐसे ग्रो कर रहे थे. उस वॉल की सपोर्ट के साथ वो ग्रो कर रहे थे. आपने पढ़ा है ना ईवीएस में क्लाइमर्स, हर्ब्स, श्रब्स, ये सब पढ़ी है ना आपने चीजें. तो वैसे ही ये जो रोजेस और सनफ्लावर्स थे, ये एकदम दीवार की सपोर्ट के साथ, दीवार के साथ साथ ग्रो कर रहे थे. तो उसके लिए वर्ड है stood high against the wall. Underline this line. Stood high against the wall. इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे सब. Right? Stood high against the wall. Sunflowers और roses wall के साथ साथ एकदम ग्रो कर रहे थे. There were also marigolds, poppies and pansies. और कौन-कौन से flowers थे? Marigolds, poppies, pansies. So in total we have 5 flowers here. इस chapter में 5 different flowers की बात की गई है. Which flowers were those? Marigolds, poppies, pansies, sunflowers and roses. Okay, ये 5 types के flowers थे. Now,
The sunshine fell on this garden more than any other, and the flowers danced and sang happily. Now let's understand this. The sunshine fell on the garden. Garden में धूप पड़ती है? धूप आती है गार्डन में? सनशाइन आती है गार्डन्स में? Yes? Show me your thumbs up. Yes. Yes, ma'am. गार्डन में धूप आती है, right? So the sunshine fell on this garden more than on any other. More than on any other means किसी और चीज से ज्यादा, किसी और गार्डन से ज्यादा इस गार्डन में सबसे ज्यादा धूप पड़ती थी. ठीक है, बाकी गार्डन्स के कंपैरेटिवली इस गार्डन में सबसे ज्यादा धूप पड़ती थी. एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang happily. और जो उस गार्डन के फ्लावर्स थे वो खुशी खुशी से गाते थे, डांस करते थे, ऐसे करते थे, राइट? दे सेड टू वन अनदर. फिर उन फ्लावर्स ने आपस में बातें करी. जैसे कि आप बच्चे बातें करते हो ना बहुत सारी आपस में क्लास में, यू चैटर अ लॉट, कितनी बातें करते हो आप बैठ के. तो वैसे ही इस गार्डन के फ्लावर्स आपस में बातें कर रहे थे. क्या बातें कर रहे थे? वो बातें कर रहे थे, we have hundreds of little gardeners, कि हमारे इस गार्डन का ध्यान रखने के लिए ऑलमोस्ट 100 के करीब छोटे छोटे गार्डनर्स हैं. Who are gardeners? Gardeners कौन होते हैं? Who can tell me? Gardeners मैम गार्डनर्स वो जो है ना फ्लावर्स की देखभाल करते हैं. गार्डन की चीजों का ध्यान रखते हैं. मैम वो चिल्ड्रंस थे. मैम वो ध्यान रखते हैं गार्डन का कि कोई कीड़ा ना लग जाए. राइट? अब फ्लावर्स में आपस में बातें, मैम जो प्लांट्स की केयर करते हैं. यस, जो गार्डन की केयर करते हैं. तो फ्लावर्स आपस में बातें कर रहे थे कि हमारा ध्यान रखने के लिए तो 100 के करीब छोटे छोटे से गार्डनर्स हैं. 100 के करीब गार्डनर्स कैसे हो सकते हैं? जो भी छोटे छोटे गार्डनर्स. तो ये किसकी बात कर रहे हैं वो फ्लावर्स? चिल्ड्रन. वो गार्डनर्स छोटे छोटे गार्डनर्स थे उस स्कूल की चिल्ड्रन. बच्चे. यस, उस स्कूल के चिल्ड्रन. One sunny morning. Sunny morning means जब sun एकदम अच्छे से शाइन कर रहा होता है. So one sunny morning, the flowers were talking to birds. अब एक तरफ flowers है, एक तरफ birds. Flowers और birds की बातें हो रही है. कैसे होती है बातें? Just like this. कैसे होती है करके दिखाओ. Just like this. So flowers and birds, they are talking to each other. अब वो क्या बातें कर रहे हैं? They are saying, I love all the children. Okay? मुझे ये सारे बच्चों से बहुत प्यार है. But लेकिन I love the dear little ones most of all. लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है. ये किसने कहा? Said a poppy. ये गार्डन में फ्लावर था पॉपी. तो पॉपी फ्लावर ने कहा, बर्ड्स को कहा कि इस गार्डन के जो छोटे छोटे गार्डनर्स हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन सबसे बहुत प्यार है. लेकिन जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं ना, मुझे सबसे ज़्यादा वो पसंद है. सो I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. क्या लिखा है इस लाइन में? I like them. पॉपी ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है जब वो मेरे लिए क्या लेके आते हैं? वाटरिंग कैंस. वाटरिंग कैंस मीन्स वो वाले कैंस, वो वाले कंटेनर्स जिनके साथ पानी दिया जाता है. आपने देखा है किन कंटेनर्स के साथ पानी दिया जाता है पौधों को? दे आर कॉल्ड वाटरिंग कैंस. अंडरलाइन दिस वर्ड वाटरिंग. वाटरिंग कैंस. वाटरिंग कैंस मीन्स वो वाले कैंस जिनके साथ पानी दिया जाता है. तो मुझे अच्छा लगता है, पॉपी ने बोला, मुझे अच्छा लगता है जब भी छोटे छोटे बच्चे वाटरिंग कैंस लेके आते हैं और क्या करते हैं? एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. प्लांट की रूट्स कहाँ होती है? जमीन. ये जो जमीन है, सॉइल है, उसके अंदर होती है ना प्लांट्स की रूट्स. यहाँ पर अगर ये जमीन है
तो जमीन के अंदर प्लांट्स की रूट्स होती है। तो जैसे आपको भूख लगती है, like that flowers also feel hungry and thirsty. तो flowers अपनी थर्स्ट, अपनी प्यास कैसे बुझाते हैं? पानी पी के। तो उनको वो पानी कौन पिलाता है? वो छोटे छोटे से small children who bring their watering cans and water their thirsty roots. Thirsty means प्यासी. Underline this word thirsty. 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 Okay, so thirsty roots means प्यासी roots. वो जो प्यासी roots को बच्चे पानी पिलाते हैं तो पॉपी फ्लावर को बहुत पसंद है. So next line. thirsty को अंडरलाइन करना है. Yes, underline thirsty. Okay, next. Yes. मैम thirsty root. Yes, thirsty. Thirsty को अकेला अंडरलाइन करो. Yes, said the marigolds. फिर marigolds ने कहा, marigold flower जो है उसने बोला, the boys are good to us too. कि वो जो लड़के हैं ना वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं. The boys are good to us too. Good to us means हमारे साथ अच्छी तरह से बिहेव करते हैं. They dig the ground so well. Dig means खुदाई करना. कैसे खुदाई की जाती है? Show me the action. ऐसे 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 कैसे जमीन खोदते हैं? Like this. So कहते हैं dig करना. Okay? They dig the ground so well. वो ground को बहुत अच्छे से dig करते हैं. तो जब ग्राउंड को अच्छे से डिग किया जाएगा तो फिर जो फ्लावर है ना वो बहुत अच्छे से खिलता है, क्योंकि उसको अच्छे से पानी मिलता है, धूप होती है, फिर अच्छे से रूट्स में एब्जॉर्ब हुई होती है, वो भी पूरे फ्लावर को, पूरे प्लांट को अच्छे से मिल जाती है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. We love the little children, said the tiny bird. उस tiny से bird ने underline tiny, T-I-N-Y. Underline this word tiny, T-I-N-Y. Tiny को underline करो. Tiny means छोटा सा. What is the meaning of tiny? छोटा सा. So we love the yes, we love the little children, said a tiny bird. एक छोटे से bird ने बोला कि हमें तो ये छोटे बच्चे बहुत पसंद है. They are kind and they bring bread for us. उस छोटे से बर्ड ने कहा कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये बहुत काइंड है. काइंड मीन्स दयालु. ये बच्चे बहुत ही दयालु है और ये हमारे लिए क्या लेके आते हैं? क्या लेके आते हैं? वो बर्ड्स के लिए क्या लेके जाते हैं बच्चे? ब्रेड. आप खाते हो ब्रेड? You eat bread? Yes, you eat bread with jam or right? With jam or butter. You make it sandwich also. So just like that, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बर्ड्स के लिए ब्रेड लेके जाते थे. तो इसलिए बर्ड्स को बड़ा पसंद था कि ये बच्चे हमारे लिए ब्रेड्स लेके आते हैं. आप भी बर्ड्स के लिए कुछ डालते हो ना कभी कभी खाने के लिए. समटाइम्स यू गिव देम वाटर टू ड्रिंक. आप अपने टेरेस पे रख देते हो पानी, छोटे छोटे बाइट्स कर देते हो चपाती के, ब्रेड्स के, राइट? तो ये बच्चे भी बर्ड्स के लिए ब्रेड लेके जाते थे. All the flowers said, सभी flowers ने बोला, we must work hard to make our dresses pretty, for the children will be here soon. तो फिर सारे फ्लावर्स ने इकट्ठे होकर कहा हमें बहुत हार्ड वर्क करना है, हमें सब फ्लावर्स को अपनी ड्रेसेस को एकदम प्रिटी बनाना है. प्रिटी मीन्स एकदम सुंदर बनाना है, क्योंकि बच्चे कभी भी आते होंगे, बच्चे अब आने वाले होंगे, तो उनके आने से पहले पहले हमें सुंदर दिखना है, हमें अपनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनानी है. ओके, सून मीन्स जल्द ही. तो क्या लिखा है? We must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. क्योंकि बच्चे यहाँ पे आने वाले होंगे, वो यहाँ आएंगे, फिर हमें देखेंगे. अगर हम सुंदर दिखेंगे तो बच्चों को देख के खुशी होगी, वो खुश होंगे सुंदर सुंदर फ्लावर्स देख के. The sun said, फिर सन ने बोला. सन ने क्या बोला? I will help you also. मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा. For nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. सन ने बोला, I will also help you. मैं भी आपकी हेल्प करूँगा. For nothing pleases.
Pleases, underline this word pleases, pleases, इस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे. Pleases means खुशी होना. जब किसी चीज से आपको खुशी मिलती है, आपको अच्छा लगता है. एक प्लीज तो होता है ना, कैन यू प्लीज गिव मी सम वाटर, क्या आप मुझे प्लीज पानी दे दोगे. यहाँ पर प्लीज दूसरा वाला है, इसका अलग मीनिंग है. यहाँ पर प्लीज का मीनिंग है जब किसी चीज से आपको अच्छा लगता है. ओके, सो द सन सेड, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा. For nothing pleases me better than to see the children running about. कि उसने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, जब बच्चे मेरी सनशाइन में दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो मुझे उससे ज्यादा कुछ भी और पसंद नहीं है. सबसे ज्यादा चीज यही पसंद है कि बच्चे मेरी गोल्डन सनशाइन में दौड़ते हैं. राइट, सो उसने बोला आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी आपकी मदद करूंगा फ्लावर्स. For nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. Right? Meaning clear हुआ इसका? If yes, then show me a thumbs up. Okay. Then suddenly. Suddenly means अचानक से. कैसे करना है suddenly? Suddenly. अचानक से. The children came out laughing and singing. How do you laugh? Show me, कैसे हंसते हो आप? बच्चे हंसते और गाते हुए कैसे आते हैं? Very good. सभी जो आप हल्की हल्की स्माइल पास करो ना, ये नहीं होता, खुल के हंसना होता है. Laugh means खुल के हंसना, एकदम जोर से. ठीक है? So suddenly the children came out. बच्चे आ गए बाहर, laughing and singing, हंस के आ रहे हैं, गा के आ रहे हैं. And the flowers stopped their songs to listen to them. Flowers पहले songs गा रहे थे, लेकिन जैसे ही बच्चे आ गए, flowers क्या हो गए एकदम से? चुप. Flowers stopped their songs to listen to them. अब जैसे बच्चे आ गए, फ्लावर्स का मन हुआ हम बच्चों की बातें सुने, इसीलिए वो खुद चुप हो गए. ओके. Oh, look at that tall sunflower, said one child. एक बच्चे ने कहा, look at that tall sunflower. Tall means, what is the meaning of tall? लंबा. बच्चे ने कहा लंबा. and the sunflower did its head proudly. Tall. और जब एक बच्चे ने कहा ना sunflower, तो वो sunflower बड़ा खुश हो गया, उसने अपना हेड ऐसे उठा लिया. जब मम्मा आपकी तारीफ करती है घर पे, तो आप कैसे फील करते हो? ऐसे करते हो? Do you pull up your collars like this? कि देखो मेरी तारीफ हुई है. तो ऐसे ही सनफ्लावर ने क्या किया, अपना हेड ऐसे उठा लिया, खुशी से. उसको खुद पे प्राउड हो रहा था, वो खुद पे बहुत प्राउड फील कर रहा था. वो उसको खुद पे गर्व हो रहा था कि देखो मेरी तारीफ हुई है. Another child said, फिर एक और बच्चे ने कहा, I love the marigold in its golden dress. एक दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे तो वो मैरीगोल्ड फ्लावर पसंद है. और मैरीगोल्ड फ्लावर ने कौन सी ड्रेस पहनी हुई थी? Who can tell me? मैरीगोल्ड फ्लावर ने कौन सी ड्रेस? Golden dress. गोल्डन ड्रेस. यस, उसने गोल्डन ड्रेस. गोल्डन ड्रेस. सोचो कोई फ्लावर ड्रेस थोड़ी ना पहनेगा. यहाँ पर ड्रेस पहनने का मीनिंग है कि उसका कलर कौन सा था. ठीक है, ये सच में उसने कोई कपड़े नहीं पहन रखे हैं फ्लावर्स ने, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो ड्रेस का कलर था, द कलर, उनका जो फ्लावर्स का कलर था, द कलर ऑफ द फ्लावर्स इज गोल्डन. ओके. बच्चों को ऐसा लगता है कि डिफरेंट फ्लावर्स हैं, उन्होंने ड्रेसेस पहनी हुई है, बट ऐसी ड्रेसेस थोड़ी ना पहनते हैं वो. इट इज जस्ट देयर कलर. ओके. सो आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस. फिर मैरीगोल्ड ने क्या किया? मैरीगोल्ड फ्लावर भी खुश हो गया. कैसे स्माइल किया उसने? मेरी भी तारीफ हो रही है, बच्चे मेरे भी अच्छा हो गया.
It was indeed a magic garden because fairies too. Underline the word fairies, Fairies, fairies. अब ये गार्डन मैजिकल क्यों था? Because there were, क्या था इसमें? फेरीज थी. फेरीज को और क्या कहते हैं हम? What do we call fairies? Angel. Angel. Ma'am, angel. Yes. Angel. So that is why Angel. garden is, Ma'am, angel. yes, it was indeed. Indeed means waki. Underline the word indeed also. INDEED. आपको पता है ना that we are on page number 6. हम page number 6 पे है. Do you know this? The first line of the page number 6. It was indeed. Underline the word indeed. Indeed means truly. वाकई, सच में. इस सच में ये एक मैजिक गार्डन था because it had fairies too. यहाँ पे परियां भी थी. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. वो जो फेरीज थी, एंजल्स थी, वो उस गार्डन में डांस किया करती थी. वो उस गार्डन में स्वीट सॉन्ग्स गाया करती थी, जो कि सिर्फ कौन सुन सकता था? Who could listen to those songs? Only the Children. Only the children. Very good. तो सिर्फ बच्चे ही वो सॉन्ग सुन सकते थे. Now, after a time, अब एक टाइम के बाद क्या हुआ? The fairies came out dancing and talked with the children. कुछ टाइम के बाद परियां बाहर आई अपने घर से और उन्होंने बच्चों के साथ बात करना स्टार्ट कर दिया. Just imagine आपके साथ ऐसी परियां बात करेंगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा? So in that magical garden, परियां बाहर आई, उन्होंने बच्चों से बातें की. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. उनकी ड्रेसेस जो थी परियों की वो फ्लावर्स के साथ बनी हुई थी. फ्लावर्स की ड्रेसेस थी उनकी और उनके जो विंग्स थे, विंग्स मीन्स उनके पर, वो एकदम सनशाइन के थे. उनमें से सूरज की धूप की जैसे लाइट्स निकलती थी उनके विंग्स में से. जस्ट इमेजिन, फूलों वाले कपड़े पहने हुए परियों ने, उनके पर पे, उनके विंग्स पे सनशाइन, धूप, लाइट निकल रही है. The magic garden was quiet that night. अब दिन बीत गया था, रात हो गई थी, तो रात को मैजिक गार्डन कैसा हो गया? कैसा हो गया? Quiet. Quiet means शांत. अब रात को वहां पे कोई कुछ नहीं बोल रहा था. The flowers and birds were asleep. Asleep means वो सो गए थे. Flowers and birds were, show me the action. Flowers and birds were asleep. अब रात को सब सो गए. Flowers भी सो गए and the birds also, they also went to sleep and dreaming of the next day. और सोते सोते उन्होंने क्या किया? उन्होंने ड्रीम्स देखे. फ्लावर्स ने भी ड्रीम्स देखे. और किसने ड्रीम्स देखे? फ्लावर्स ने भी ड्रीम्स देखे, बर्ड्स ने भी ड्रीम्स देखे. उन्होंने क्या ड्रीम्स देखे फ्लावर्स और बर्ड्स ने? The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when children would come again. उन्होंने ये सपना देखा कि बच्चे फिर से आ रहे हैं गार्डन में और वो फिर से हमारे साथ बातें करेंगे, गाएंगे, डांस करेंगे, राइट? और फिर से उनको अच्छा लगेगा, वो फिर से बर्ड्स के लिए ब्रेड लेके आएंगे, फिर से प्लांट्स को वो पानी पिलाएंगे और उन सबको उन बच्चों का आना बहुत अच्छा लगता था. So, is the story clear to you all? Show me a thumbs up if it is clear. Right? Okay, great. Now, write the name of the chapter in the chat box. जल्दी से chapter का name लिखो chat box में. Let me see किसको याद है. Who remembers the name of the chapter? Quickly.